Hello students, welcome back to your online digital class Study Nest by Deepak sir, and today we'll do class 12th CBSE boards English chapter Deep Water. William Douglas was born in Maine. Maine is a place in France. After graduating with Bachelors of Art in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. Yakima is in Washington. The following extract is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. So it is this extract is taken from a book Of Men and Mountains written by William O. Douglas. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. So he was very small, he near about drowned in the swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcomes it. So it's all the fear of water and how he overcame that fear of water. It had happened when I was 10 or 11 years old. So all it started when he was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA at Yakima. Yakima, as I told you, is in Washington, and YMCA is Young Men's Christian Association. That offered exactly the opportunity. तो जब वो छोटा 10-11 साल का था तो उसने डिसाइड किया था वो स्विमिंग सीखेगा, और वो YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन का एक पूल था याकिमा में जो कि वॉशिंगटन में, उसमें जाके और उसको लगा ये सही अवसर होगा वहाँ पे उसका तैरना सीखना. The Yakima rivers was treacherous, means it was dangerous. Mother continually warned against it. Mother ने उसकी मदर उसको continually कहती थी वहाँ तैरने मत जाओ, वो खतरनाक है. It kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. और वो हमेशा उसको बताती रहती थी कि कितने लोग उस रिवर में डूब के मर गए. But YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. So YMCA pool, according to him, was a safer place for him. As at the shallow end, it was only 2 or 3 feet deep. जो वहाँ पे कम गहराई थी वहाँ से 2-3 फीट गहरा था वो. And while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual, and it was 9 feet deep at the other end, which was opposite to it, and it was gradual, means it was step by step the depth increased. तो जो उसकी डेप्थ थी उसकी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती चली गई, तो ये पूल उसको सेफ लग रहा था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. वाटर विंग्स पैरों में पहने जाते हैं जो कि आप पानी में डूब ना पाएँ, इसलिए आपकी मदद करते हैं. बट आई सबड्यूड माई I hated to walk naked into it and show my skinny legs. So he always hated to walk because he was very thin and skinny. So he hated walking naked. वो बिना कपड़ों के वहाँ जाने में उसको शर्म आती थी, उसके पैर दुबले पतले थे. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन उसने अपनी प्राइड को, अपनी जो इस बात को छुपा लिया और सप्रेस कर लिया और वो पानी में जाने लगा. From the beginning, however, I had an aversion to the water. Aversion is hatred. Here also it's a sort of a dislike for the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. So when he was 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California. जब वो 3-4 साल का था तो उसके पिता उसको एक बीच पे कैलिफोर्निया में ले गए. He and I stood together in the surf. Surf is the swelling of the water. Okay, and I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. तो वो जब वो किनारे खड़े थे तो पानी की लहरें आई उसको, जो वो उसने अपने फादर को जोर से पकड़ रखा था, फिर भी उसको पानी की लहरों ने गिरा दिया और उसके ऊपर से निकल गई. आई वॉज बरीड इन वाटर. वो लगभग पानी में डूब गया था. माई ब्रेथ वॉज गॉन. उसकी सांसें रुक गई थी. आई वॉज फ्राइटेंड. ही वॉज सो अफ्रेड. वो बहुत डर गया था. फादर लाव बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. सो फादर, बिकॉज ही वॉज ग्रोन अप मैन, so he laughed at his looking at his kid, but he had a sort of a terror in his heart, and he knew the overpowering force of the waves, like that it's very hard to destroy something. So वो समझ गया कि पानी की लहरें कितनी खतरनाक होती हैं, इनसे पार पाना कितना मुश्किल होता है. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. So when he went there to the YMCA pool, suddenly his memories, the unpleasant memories which were there in his heart, again came back, were brought back to him, and he was awakened, and that awakened his childish fear.
जब वो YMCA पूल में पहुंचा तो उसकी पुरानी यादें जो उसके अभी आपने सुना कैसे अपने पिता के साथ गया था तो लहरें उसके ऊपर से निकल गई, तो वो आ गए और उसने दोबारा वो उसके मन में भय ने स्थान बना लिया. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. So he paddled. He was playing. He started paddling with his legs and watching the other boys and tried to copy the other boys. इसने अपने नए वाटर विंग्स जो उसने पहने थे पानी में पैर चलाने स्टार्ट किए और दूसरे बच्चे जो वहाँ पे स्विमिंग की कोशिश कर रहे थे या प्रैक्टिस कर रहे थे उनकी नकल करनी स्टार्ट कर दी. I did this for 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So he did that continued that practice for 2-3 days and he felt at ease, and as he was feeling easy, something happened, something strange happened, sort of a misadventure happened with him. जब वो थोड़ा सा ईज फील कर रहा था, 2-3 दिन जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसान फील होने लगता है, ऐसा इसको फील होने लगा था. लेकिन अचानक इसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई कि ये फिर उसी भय में चला गया. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय probably 18 years old. So when he was sitting there next to the pool, a sort of an athlete, a strong boy came there who was near about 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. So he was a beautiful example of a strong boy, a sort of an athlete. He yelled, "Hi Skinny, how would you like to be ducked?" तो उसने इसकी तरफ, अब जब ये वहाँ पहुँचा तो उसने देखा एक मजबूत कद काठी वाला नवयुवक वहाँ से जा रहा था और वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था कि एक बल्कि फिजिकली फिट और मजबूत व्यक्ति कैसा होना चाहिए. उसने जैसे ही इसको देखा तो उसने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, हे अरे कमज़ोर लड़के, क्या तुम पानी में डूबना चाहोगे? With that he picked me up and tossed me into the deep end. Or then he picked him up and he threw him in the deep end. Remember, not at the shallow end. उसने उसको उठाया, पानी जहाँ पे गहरा था उस तरफ फेंक दिया. I landed in a sitting position because he was sitting at the side of the pool, so he landed in the same way. Swallowed water and went at once to the bottom. And he started swallowing water. The water started going inside him, and finally he was at the end of the bottom. I was frightened, but not yet frightened of my weight. So he was frightened, but he didn't panic at all. जब लड़के ने उसको पानी में फेंका वो डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, and as he was going down, he planned that when his feet are going to hit the bottom, I would make a big jump, and he thought that when he is going to touch the bottom, he'll make a big jump from down and come to the surface. And when he'll come to the surface, he'll start pedaling and reach to at the side of the pool, edge of the pool. तो इसने सोच लिया था कि ये किनारे तो पहुंच, जब ये नीचे जा रहा था उसने हिम्मत नहीं हारी. इसने सोचा कि मैं जा तो रहा हूँ, और प्लान बना लिया था जब ये नीचे पहुंचेगा तो पैरों से जोर से ठोकर मार के ऊपर निकल आएगा और फिर वहाँ से किनारे तैरता तैरता चला जाएगा. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and as he was going down, that 9 feet appeared to be 90 because it took a lot of time for him to move down. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. And the moment he was about to touch the bottom, the lungs were about to burst because of the pressure of water. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. So that the time he touched the bottom, he collected all his strength to jump upwards and come out of the water. I imagined I would bob to the surface like a cork. He thought that he will come out of the surface, jump out of the surface like a cork. Cork is a bottle stopper, if you have seen it. Like old days, the bottles had a stopper that was called cork. Even some cricket balls were made up of cork. I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. He came up slowly and saw nothing, but it was water everywhere. Water that had a dirty yellow tint to it. Water that had a dirty yellow shade to it. It grew panic. I grew panicky. So he became uneasy. I reached up as if to grab a rope. He tried to grab something, a rope, but his hand clutched only water. When he tried to catch something, his hand only clutched water. I was suffocating. He was losing his breath. I tried to yell, he tried to shout, but no sound came out because it was water all inside.
Then my eyes and nose came out of water but not my mouth, and slowly his eyes and nose came out of water but his mouth was still inside the water. सो जब वो नीचे जा रहा था तो उसने बहुत कोशिश, उसको लगा कि नीचे की जो गहराई वो 9 फीट की नहीं बल्कि 90 फीट की, क्योंकि नीचे जाने बहुत समय लग रहा था, और जब आपका ख़राब समय आता है तो आपका समय बहुत धीरे धीरे गुजरता है। इसको लगा था इसके लंग्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे क्योंकि पानी का इतना प्रेशर था। लेकिन फिर भी जैसे ही नीचे पहुंचा इसने पूरी ताकत लगाई, जंप लगाया, ऊपर आया, और इसको लगा था कि जंप लगाया तो कॉर्क की एक बॉल भी होती है, क्रिकेट की बॉल, और पुराने ज़माने में बॉटल में जो स्टॉपर लगता था वो भी कॉर्क का होता था। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जब ये आया तो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाया, इसका केवल इसकी आंखें और नाक ही बाहर आई, मुंह पानी के अंदर था। अब इसने हिम्मत यह धीरे धीरे हारने लगा था। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. So he flail is a sort of a tool of threshing something. So जैसे सूप होता है हिंदी में आपने, तो वो ऐसे पानी में पैर मार रहा था, हाथ पैर मार रहा था बचने के लिए, एंड कुछ पानी इसने पी लिया था, इसका गला चोक होने लगा था। I tried to bring my legs up and he was trying to bring his leg up, अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था, but they hang as dead weight. तो they were hanging as he didn't had any energy, paralyzed and rigid. They were not moving and they appeared that he had been having a paralytic attack. अब उसके पैर बिल्कुल ऐसे लग रहा था एक बहुत ही ज़्यादा भारी हो गए हैं और मूव नहीं कर पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक जोर का फोर्स उसको वापस अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम, ही शाउटेड, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सो बिकॉज देयर वाजंट एनीवन, so only the water heard him. It's a saying only, nothing like that. और उसने चीखा लेकिन पानी ने उसकी आवाज़ सुनी, किसी और ने नहीं। I had started on the long journey back to the bottom of the pool and I again started moving inside the water. अब वो पानी के अंदर दोबारा जाना स्टार्ट हो गया। I struck at the water as I went down. He tried to hit at the water. पानी में उसने हाथ पर मारने की कोशिश करी। Expanding my strength, अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। As one in a nightmare fights an irresistible force, और जैसे कि एक आप डरावना सपना देखते हैं आप, तो एक ऐसे फोर्स से जिसको हम लोग कभी हरा नहीं सकते और जिसका मुकाबला ना किया जैसे उससे लड़ते रहते हैं एक दुस्वप्न में, बुरे स्वप्न में, वैसे ही वॉज फाइटिंग विद समथिंग दैट वॉज अननोन टू हिम, एंड वॉट वॉज दैट वॉज हिज ओन फियर। उसका अपना ही डर उसको पानी में वापस खींच लेता था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, इसकी पूरी सांसें लगभग डूब चुकी थी, ख़त्म हो रही थी इसकी सांस लेने की क्षमता। My lungs ached, my head throbbed, his lungs were aching and head was like vibrating, सर दर्द के मारे भारी हो रहा था। I was getting dizzy, इसको धीरे धीरे बेहोशी आ रही थी। But I remembered the strategy, I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. But still he remembered the strategy, the plan he had made, कि नीचे जाएंगे, उसमें पैर मारेंगे और ऊपर निकल आएंगे। I would lie flat on the water and at that time he'll lie flat on the water, strike out with my arms and he'll move with his arms and thrash with my legs, and he'll thrash means throw his legs. Then he would get to the edge of the pool and this was his plan to get at the end at the pool and get himself safe. और उसका यही प्लान था कि पूल के किनारे पहुंच के अपने आप को बचा लेंगे, ये प्लान कर रहा है अभी तक। I went down endlessly, I opened my eyes and he was going down with the, and that endlessly means that it appeared to him that there was no end to this pool, to the depth of the pool. अब वो नीचे जा रहा था, उसको लगा इस पूल का कोई अंत नहीं है। अपनी आंखें खोली, nothing but water with a yellow glow. Water was there with a yellow glow. Yellow glow could be because of the sunlight falling. That's why the water appeared was having a yellow glow. Dark water that could not see through, and it was dark water, he was unable to see through it because it was not clear at all. अब वो पानी के अंदर जा रहा है, नीचे एक येलो सा ग्लो है पानी में, एक रोशनी है जो सूरज की रोशनी होगी, और पानी नीचे जो होता है वो बहुत गहरा हो जाता है क्योंकि पानी उतना साफ नहीं होता जितना कि ऊपर साफ होता है, उतना वो उसमें देखना मुश्किल हो जाता है। एंड देन sheer stark terror seized me and again that clear and pure terror seized him. फिर उसको बिल्कुल उसी डर ने अपने आप उसको अपने बाहों में ले लिया, समेट लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड। टेरर जिसका कोई समझने का तरीका नहीं होता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। तो द वन हु हैज नॉट एक्सपीरियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, इट्स ऑब्वियस फॉर एवरीथिंग,
इफ़ यू हैव नेवर एक्सपीरियंस सॉरो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ अदर्स। तो अब टेरर जो था उसका वो ऐसा था, अगर आपने कभी किसी का दुख, अब आप दुखी हुए नहीं तो आपको किसी का दुख नहीं पता चलेगा, आप कभी डरे नहीं हैं तो आपको, आपने ऐसी स्थिति से आपसे रूबरू नहीं हुआ, उससे सामना नहीं हुआ, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये क्या होता है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वो पानी के नीचे चिल्ला रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, और बिल्कुल वो बिल्कुल एक पैरालाइज हो चुका था, मतलब ओवर पावर हो चुका था कि पानी ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। इवन द स्ट्रीम इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो उसकी वो थी चीख थी वो भी लग रहा बिल्कुल जम चुकी थी पानी में। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, तो इट वॉज ओनली हिज हार्ट वॉज वर्किंग एंड हिज पाउंडिंग, देयर वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ बीटिंग in his head that was saying that you are still alive, तुम अभी भी जिंदा हो। And then in the midst of the terror came a touch of reason, and then in between of these things came a touch of reason, a sort of a reason, some logical thought came to his mind. I must remember to jump when I hit the bottom, और उसने एक एकदम तक एक सोच आई कि उसको पानी में नीचे पहुंचना है तो उसको जंप लगा के ऊपर आना है। At last I felt the tiles under me, and finally he got the end of it, which he was searching for such a long time. अब आखिर में उसके नीचे स्विमिंग पूल टाइल्स होती हैं, उसके पैरों में टकराती हैं। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और उसके टोज जो है उसके वहाँ पहुँचते हैं उसको ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, पैर अपने एक मतलब ज़मीन पे पैर टिकाने के लिए उसके पैर वहाँ पहुँच जाते हैं। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, तो वट एवर ही हैड द एनर्जी, एवरीथिंग आई हैड मीन दैट एनर्जी ही हैड, द स्ट्रेंथ ही हैड, ही रिकलेक्टेड एवरीथिंग एंड ही मेड अ फाइनल जंप। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी और एक जंप लगा दी। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप से कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, द वाटर वॉज ऑल अराउंड हिम। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। सो ही वॉज सर्चिंग दैट ही कुड गेट एनी सॉर्ट ऑफ अ हेल्प ऑफ एनी रोप, लैडर और वाटर विंग्स, बट देयर वॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और उसने कोशिश करी उसको रस्सियाँ मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीले रंग के पानी ने इसको मानो जकड़ा रखा था। स्टार्क टेरर लुक टुक ऑन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब धीरे धीरे इसका डर बढ़ता जा रहा था, ये ज़्यादा भयभीत होता जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी बिजली के एक ज़बरदस्त झटके ने किसी को अपनी आगोश में ले लिया हो, वैसे ही इसको उस डर ने इसको पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था। I shook and trembled with fright. He was shaking and trembling with fright. बहुत डर से कांप रहा था वो। My arms could not move. His arms were not moving. उसके हाथ नहीं चल रहे थे। My legs could not move. उसके पैर नहीं चल रहे थे। I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. He tried to call for help, to call for his mother. Generally, it happens if a child is in any sort of a trouble, a danger, he definitely calls his mother. तो जब बच्चा किसी मुसीबत में होता है तो अपनी माँ को ही बुलाता है, ऐसा इसने भी सोचा। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, आई वॉज कमिंग आउट टू द ऑफुल येलो वाटर, एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट, एंड फाइनली कुछ उसे रोशनी दिखाई पड़ी और वो उस येलो वाटर से बाहर आ रहा था। कम से कम इसकी आंखें तो बाहर आ गई थी और नोज भी लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, देन ही मेड अ थर्ड अटेम्प्ट, उसने तीसरी कोशिश करी। I sucked for air and got water. इसने थोड़ा सा फिर हवा में सांस ली और उसके अंदर पानी चला गया। जब सांस लेगा अंदर तो पानी भी जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर था। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, अब वो येलो लाइट धीरे धीरे डिम हो रही थी एंड इट वॉज फेडिंग अवे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रियलाइज्ड इवन माई लेग्स लिम्प, और फिर धीरे धीरे सारे एफर्ट जो थे इसके ख़त्म हो गए और इसने पूरा रिलैक्स हो गया ये। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और इसके जो पैर थे वो बिल्कुल ऐसे हो गए जिनमें उनमें जान न रह गई हो। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एंड देयर वाज अ ब्लैकनेस ओवर हिज ब्रेन, उसके मस्तिष्क में भी एक स्याहापन छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, इसके मन से डर निकल गया। टेरर, बिल्कुल सब तरह का डर निकल गया, भय नहीं निकल गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई अनईजीनेस नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब तरह शांति थी, कुछ नहीं था, मतलब कोई परेशानी नहीं थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प। अब कितना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल नींद में जा रहा था, किसी चीज़ से डर नहीं, कोई भय नहीं,
और धीरे 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 ये मौत की आगोश में चला जा रहा था, ऐसे लग रहा था स्पेस में उड़ रहा है। और इसको लगा था मौत ने इसको अपनी बाहों में ऐसे ले लिया जैसे कि इसकी मदर की बाहें, और अब इसको लगा था इसको सो जाना चाहिए। धीरे धीरे बेहोशी की ओर बढ़ रहा था। अक्रॉस टू बी ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मीन्स टू बिकम अनकॉन्शियस, वो धीरे धीरे बेहोशी की तरफ जा रहा था, यानी कि अब ये पानी में डूबना स्टार्ट हो गया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, द चैप दैट थ्रू मी in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. So when he regained his senses, he saw that he was lying on his stomach and he was vomiting. And the chap, the boy who threw him in the water, was regretting for his act, and he said, "I was just joking." And the person saying that the kid had already died, take him to the locker room. Locker room is a place to change clothes. अब जब इसको बेहोशी इसकी टूटी तो उसने देखा कि ये किनारे पे लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा है, और जिस लड़के ने इसको पानी में फेंका था वो कह रहा था मैं तो बस मजाक कर रहा था। एक और आवाज़ सुनाई पड़ती है कि इस मजाक में तो बच्चे की जान ही चली गई थी, लाओ इसको लॉकर रूम में लेके चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई शूक एंड cried when I lay on my bed and could not eat that night. So that night he was very afraid and he was unable to eat anything. उस रात में बहुत डरा हुआ था और कुछ खाने पीने की इसको सुधी नहीं थी। For days a haunting fear was in my heart. So again that fear that was coming back to him, that was haunting him, like continuously coming back to him. The slightest exertion upset me. Even a small strain upset him, making me wobbly. That made him unsteady. And so अब उसके अंदर वो भय वापस, जो रात में सोता था तो उसको वही बातें याद आती थी। जब आप मौत के मुंह से निकल के आते हैं तो बहुत दिन तक सामान्य नहीं हो पाते। ऐसा ही इसके साथ था, ये बहुत दिन तक रात में सो नहीं पाता था। इसको अब वही डर लगता, ये अपने हाथ पैरों को जोर से बांध लेता था, समेट लेता था, सिकोड़ लेता था कि ताकि कहीं पानी में डूब ना जाए। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और अब ये पूल पे कभी वापस नहीं जाना चाहता था और ये अवॉइड करना चाहता था। A few years later, when I came to know the water of the cascade, I wanted to get into them. After after a few years, I again came to know about the water of the cascade. Cascade is a waterfall, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river, Teton is a bumping river, or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. एंड जब भी वो वहाँ पे जाता था कास्केट के पास, झरने के पास, तो वो जाना चाहता था, जब वेड करना चाहता था, वेड मतलब था पानी में चलने की कोशिश करता था, टियोटन या बम्पिंग रिवर, एक रिवर जिसका नाम था बम्पिंग रिवर भी, या वार्म लेक में जाता था, गोड रॉक्स के सब प्लेसेस के नाम है, और तो उसके अंदर वही डर बैठ जाता था कि जो उसके अंदर पूल में आ गया था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, दैट टोटली like overpowered him, तो वो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता था। My legs would have paralyzed, icy horror would grab my heart, उसके पैरों में ऐसे बिल्कुल होता था, लकवा मार गया है, और बिल्कुल उसको बहुत डर लगता था। This handicap stayed with me as the years rolled in, और वो एक जो भय था, ये डिसएडवांटेज उसके पास तब तक रहा जब तक कि कई साल गुजरते गए, वो तब भी पानी से डरता रहा। इन कैनॉयज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्स, कैनॉयज छोटी छोटी बोट्स को कहते हैं, व्हेन पीपल वर फिशिंग, व्हेन ही वाज फिशिंग देयर, लैंडलॉक्स इज द हार्बर, सैल्मन इज अ नेम ऑफ फिश, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर इज अ काउंटी इन इंग्लैंड, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलिस इन ओरिगन। तो ये सब प्लेसेस के नाम है। ओरिगन इज ऑल्सो अ काउंटी इन इंग्लैंड। इन प्लेसेस पे जब भी वो जाता था या फिर किसी लेक या रिवर में जाता था तो हमेशा उसके मन में वो डर बैठा रहता था। वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड में, जहाँ कहीं भी जाता था वो डर उसके मन में रहता था। ये कुछ प्लेसेस के नाम दिए थे, जैसे कि ओरिगन आई टोल्ड यू इज़ अ काउंटी इन इंग्लैंड, और डेस्ट्यूट इज़ ऑल्सो अ काउंटी जैसे कि हम लोग के यहाँ शहर होते हैं, स्टेट्स होते हैं, वैसे होती है इंग्लैंड में। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. अब इसने बहुत कोशिश करी उस भय से निकलने के लिए, लेकिन उस भय ने इसको पूरी तरह से अपने से कब्जे में ले रखा था। Finally, one October, I decided to get an instructor to learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. So finally, he got a teacher and instructor who could teach him how to swim.
and he went to a pool, practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. The instructor put a belt around his waist, and a rope was attached to the belt, and that went through a pulley that was ran down overhead cable. An overhead cable was there, and that rope came down from a pulley, and that pulley was attached to the belt that was at his back. So whenever he used to get inside the water, that instructor used to pull him back. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. तो इसने अपने एक पेट में बेल्ट बांध ली, बेल्ट में पुली से एक रस्सी बंधी थी, रस्सी एक केबल से जा रही थी। जब भी पानी में डूबता था, इंस्ट्रक्टर, इसका टीचर, इसको वापस खींच लेता था। इस तरह से पानी में तैरना सीख रहा था। It was 3 months before the tension began to slack up. After 3 months, the tension that he had in his mind began to weaken, began to fade away. 3 महीने बाद इसके मन से डर धीरे धीरे जाने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale. और उसने फिर इसको पानी में कैसे अपना सर अंदर डाले और exhale, सांस बाहर छोड़े, और पानी में and raise my nose and inhale, और अपना चेहरा पानी से बाहर निकाले और सांस अंदर ले, ये इसको सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. So by small pieces, in small pieces, his panic, the uneasiness that he had in his heart started to fade away. धीरे धीरे उसके मन का जो भय था खत्म होने लगा। अब ये अपना हेड पानी के अंदर डाल देता था काफ़ी देर तक। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my leg. Then he made him sit next to the pool and asked him to kick his legs in the water. For weeks I did just that. और इसको पूल के किनारे बैठाता था, कहता पानी में अपने पैर चलाओ, और कई हफ्तों तक इसने ऐसा किया। At first my leg refused to work. पहले इसके पैरों ने काम करने से मना कर दिया। But they gradually relaxed and finally he got some relaxation and finally I could command them and he was able to move them. Command them means he was able to move according to his will. अब वो अपने पैर चलाने लगा था। Thus piece by piece he built a swimmer. और धीरे धीरे करके एक स्विमर जो थे डगलस, उसको बना दिया। And when he had perfected each piece, he put them together in an integrated whole. Perfected each piece का मतलब ये नहीं था कि अलग अलग टुकड़ों में उसको सिखाया और सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया एक बार। इंटीग्रेटेड होल मतलब एज अ होल उसको बना दिया। और इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल और स्ट्रोक। और उसने फाइनली उसको अप्रैल में बता दिया, अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, जैसा पूल के पूरी दूरी नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और मैंने स्टार्ट कर दिया, इंस्ट्रक्टर अब जा चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। लेकिन अभी भी इसका डर नहीं गया था, अभी तो इंस्ट्रक्टर था, अब इसको लगा इंस्ट्रक्टर चला गया, क्या मैं अकेले कर पाऊंगा। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, अब ये पूरी लेंथ अप एंड डाउन, पूरी दूरी पूल की अकेले नापने लगे, मीन्स स्विमिंग करने लगे। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और मार्क, वेस्टेजेस मीन्स मार्क, और जो डर के थोड़े अवशेष थे इसके अंदर वापस लौटने लगे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, बट नाउ ही कुड से, he could angrily reply back to the terror, trying to scare me. Well, here to you, look, and off I had go for another length. अब इसको लगता था कि जब कोई चीज़ इसको डराने आएगी तो खुद डर के सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा और कहेगा तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, ये लिखो जो मैं पानी में जा रहा हूँ और तैर के निकल जाऊँगा। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. अब जुलाई हो गई, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसको नहीं लग रहा था इसके मन का सारा भय दूर हो चुका। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, हैम्पशायर एज अ काउंटी इन इंग्लैंड, डाइव ऑफ अ डॉक, डॉक इज अ लैंड पाया, छलांग लगाने की जगह जो स्विमिंग पूल वगैरह में होती है वहाँ पे। तो ये जुलाई में ये वेंटवर्थ लेक पे गया न्यू हैम्पशायर पे, और जहाँ पे छलांग लग जाती वहाँ से जंप लगाई। ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट, और इसने 2 मील तक स्टैम्प एक्ट लेक तक तैरता रहा। आई स्वैम, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, ये अलग अलग तैरने के तरीके हैं, और इसने हर तरह से तैरा और वापस आया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एंड ओनली वंस डिड द टेरर, एक ही बार इसको डर लगा
When I was in the middle of the lake, जब वो लेक के मिडिल में था, when he was in the middle, at the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless sea. So when he put his head under inside the water, he saw nothing. It was bottomless water. जब उसने अपना सर पानी में डाला तो उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, केवल दूर दूर तक पानी पानी था. The old sensation returned in miniatures. The old sensation जो उसके मन में feelings थी वो भी छोटे टुकड़ों में वापस लौट रही थी. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" I fled and swam on. So he said to Mr. Terror. Terror means that what all made him afraid. तो उसने टेरर से कहा कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, और डर भाग गया और ये तैरने लगा. Yet I had residual doubts. फिर भी इसके मन में कुछ डाउट्स थे. At my first opportunity I hurried west. और पहली बार जब मौका मिला वेस्ट की तरफ गया. Up to the Teton to Conard Meadows. Meadows होते हैं grasslands. उसकी तरफ तैरता हुआ गया. ये grassland मतलब ये मत सोचे कि घास पे वो तैर लेगा, उस साइड पे गया. To the Concord Creek Trail to Meadow Glaciers. Meadow Glacier की तरफ गया. And camped in the high meadow by the side of Warm Lake. और वार्म लेक के पास एक हाई मीडोज, एक ग्रासलैंड थे जो थोड़े ऊंचे बने, तो वहाँ पे इसने अपना कैंप लगा लिया. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्राइप्ड डाइव इनटू द लेक. अगले मॉर्निंग पे इसने फिर एक अपने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी. एंड swam across to the other shore and back just as Duck Corpon used to do. और इसने फिर पानी में छलांग लगाई और वापस आया जैसे कि डक कॉर्पन करता था. डक कॉर्पन कौन था? डक कॉर्पन एक बहुत ही फेमस स्विमर था. I shouted with joy and Gilbert Park returned with echo and he was very happy. जोर से चिल्लाया और पूरे पार्क में उसकी ही आवाज़ गूंजने लगी. I conquered my fear of water. इसने पानी से जो भय था उस पर जीत हासिल कर ली थी. The experience had a deep meaning for me. और इससे इसने बहुत कुछ सीखा. As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. And this can be appreciated by those who have witnessed, those who have experienced, those who have like met face to face this terror. They can understand. जिसने इस भय को देखा हो, जिसने उसका एनकाउंटर किया हो, जो उसने आमना सामना हुआ, वही इस डर को समझ सकता और समझ सकता कितनी मुश्किल से इस डर से जीता जा सकता है. इन डेथ देयर इज पीस. मौत में तो एक शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और डेथ मरने में का जो भय है वही हम लोग को भय वो होता है मरने में. आदमी इसी चीज़ से डरता है कि वो मर ना जाए. डर का मतलब होता है वो मरने से डरता है. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. हम लोग केवल डर से ही डरते हैं. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror. So he has experienced both the feelings of dying, because remember when he was getting inside the water, a time came when he thought that he won't be able to survive, and the terror that fear of it can produce, and the terror that fear of death can produce. अब उसने समझा था कि मौत क्या होती है और मौत और मरने का भय क्या होता है. The will to live somehow grew in intensity. और जो उसके जीने की इच्छा थी उसने शायद उसको पानी से या उसके भय से जो था उसको हार को जीत में बदल दिया. At last I felt released, free to walk the trails. Finally was free. अब वो फ्री था, वो घास पे चल सकता था, पीक्स पे चढ़ सकता था और आराम से इधर उधर जा सकता था बिना डरे. पानी में तैर सकता था, कोई उसको भय नहीं था. So that was the explanation both in English and Hindi of this chapter, Deep Water. Again, as I always said, if you like the channel, please subscribe the channel and push the bell icon. Thank you. Have a nice day.